Praise the Lord. And जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह वंदना। this evening we have come here with great expectations. हम बहुत ही आनंद और धन्यवाद के साथ आज शाम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। We have come to the feet of the Lord to receive from the Lord. हम परमेश्वर के चरणों पे इसलिए आए हैं कि उससे कुछ पाकर जाएं। We have had a wonderful time of worshiping the Lord. अभी हम परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही एक सुंदर समय बिताया आराधना में, And we have been able to experience the presence of God in a very special way during the time of singing and praising the Lord. और जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति और गानों के साथ कर रहे थे तो वाकई में परमेश्वर के द्वारा हम छुए गए और कुछ खास हमने परमेश्वर से पाया है। Now as we are entering into the time of meditating from the scriptures, और जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ समय हम ध्यान के लिए निकालेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, I want to encourage you to be with a heart of expectation and with a heart of prayer. और मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के सम्मुख उम्मीद के साथ, आशा के साथ बैठें। This healing and deliverance prayer has been going on for multiple weeks since last November. और पिछले नवंबर से हम हर हफ्ते परमेश्वर के सम्मुख इस प्रकार चंगाई और छुटकारे के सभाएं चलते आ रहा है। And every week we have been seeing the glory of God being revealed. और हर एक हफ्ता परमेश्वर की महिमा को हमारे आंखों के सामने खुलते हुए, प्रकाशित होते हुए देख रहे हैं। And I believe today, the 27th of May 2026, none of us is here by coincidence. None of us is here just because we happen to be here. I believe that each one of you is here because God has brought you here for a purpose. और आज 27 मई 2026 को मैं नहीं मानता कि हम में से हर कोई यहाँ पर ऐसे ही इत्तेफाक से बैठे हैं, परंतु परमेश्वर के द्वारा उसके नियमित समय पर उसने हम में से एक-एक को यहाँ पर इकट्ठा किया है। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn to the book of Jonah. We are going to meditate from the prayer in the second chapter of book of Jonah. योना का किताब में से उसका दूसरे अध्याय में एक प्रार्थना है, उसमें से कुछ बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आज के ध्यान विषय में देखेंगे। We'll just begin from reading from the last word in the previous chapter, that is chapter 1 and verse 17, and then we read 1 and 2 of chapter 2. योना का किताब और उसका 1 का 17 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद पूरा दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. That was 1:17. Now 2:1 and 2. Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish belly, and he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. योना 1:17 यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 2 का 1 और 2। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। I believe that most of you here at least have some background about what happened to Jonah before this incident. और मैं विश्वास करता हूं कि योना के इस प्रार्थना के पीछे का भूमिका आप में से ज्यादातर लोग कम से कम एक बार तो सुने हैं, समझे हैं। But just to refresh, or maybe just for somebody who has no clue what I'm talking about, I want to tell you, God sent Jonah on a particular assignment, and he was sent to go to Nineveh, the great city, and to proclaim that their wickedness has come up to the Lord, and there is going to be a massive punishment that the Lord is going to send upon that city. लेकिन अपने याददाश्त को थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसका भूमिका इस प्रकार से है, परमेश्वर ने योना को निनवे की ओर, जो कि इजराइल के शत्रु थे, उनके नगर में भेजा था कि उनके पास परमेश्वर के छुटकारे का वचन की घोषणा करे, लेकिन योना परमेश्वर के सम्मुख से, उपस्थिति से भाग गया। And we see that he was not at all willing to obey and go to the destination God wanted him to go. Hence, he went towards Tarshish. और हम वहां पर इस प्रकार से पाते हैं कि योना को ये बात बुरी लगी और वो जहां पर परमेश्वर ने उसको जिस गंतव्य की ओर जाने के लिए ठहराया था, उसके बिल्कुल ही विपरीत दिशा की ओर चला गया। And the word very specifically says that he went from the presence of the Lord to Tarshish. और
परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि योना परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश की ओर चला गया। Dear ones, whenever we are journeying in the will of God, we are moving in the presence of God. प्रिय भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तब हम परमेश्वर के उपस्थिति में भी रहते हैं। When we are moving in obedience to God's voice, we are still moving in the presence of God. और जब हम परमेश्वर के कहे हुए बात को, आज्ञा को मानकर चलते हैं तब हम वाकई में परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। But when we are moving out of the will of God, when we are moving into the disobedience terrain, that is when we are actually getting out of the presence of God. और लेकिन जब हम परमेश्वर के इच्छा के बाहर या परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करते हुए चलते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति को त्याग कर या उससे अलग होकर चलते हैं। Sometimes we wonder, when we are entering into certain decisions, when we are going into certain places, we are not able to feel that peace of mind. We are not able to feel that everything is okay. We feel disturbed within us. We have to check, we have to test ourselves. Are we actually following where the Lord wants us to go, or are we going out of His presence? Because if we are moving along the way where He wants us to journey, His presence will come with us. और इस प्रकार से हम पाते हैं कि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर है या उसको नापसंद आने वाले किसी इच्छा की हो और हम अपने आप को ले चलते हैं तो उन अवस्थाओं में या फिर उन फैसलों में हमें थोड़ा शांति नहीं मिलता। हम कई बार अपने आप को परख कर देखने का जरूरत है कि क्या ये वाकई में परमेश्वर की इच्छा है या परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा के साथ साथ या आज्ञा को मानते हुए चल रहा हूं या उसके उल्लंघन में उसके उपस्थिति से भाग रहा हूं। We have to look at the circumstances. We have to discern ourselves and see, today, am I in the presence of God or am I outside the presence of God? और परमेश्वर के दिए हुए विवेक से अपने आप को पहचानने का या अपने आप को फिर से एक और बार जांच कर परख कर देखने का जरूरत है हर दिन कि क्या वाकई में मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं या नहीं। Parents of Jesus brought him to the temple according to the customs, but then on the return journey they went on for a few days, 3 days, and then they realized that Jesus was not with them. और यहूदियों के पर्व के उस नियमों के हिसाब से यीशु के इस धरती के जो माता पिता थे वो मंदिर में अर्पण करने के लिए ले आए या मंदिर में साथ तो ले आए, लेकिन जब वो वापस चल रहे थे उन्होंने यीशु पर ध्यान नहीं दिया। Dear ones, it took 3 days for them to realize that Jesus was missing on their return journey. और प्यारो, उनको वापस जाते वक्त 3 दिन बाद ये बात समझ में आया कि यीशु तो उनके साथ है ही नहीं। And they had to go all the way back, the 3 days journey, find him and come back on the journey. और उनके माता पिता को वापस वही 3 दिन की यात्रा करके वापस जाकर जब पता चला तो देखा कि यीशु तो अभी भी यरूशलेम में है। Dear ones, we have to analyze where and when did we get disconnected from presence of the Lord. और प्रियो, हमें ये बात भली भांति जांचने परखने की जरूरत है कि कहां पर और किस समय हमने परमेश्वर से अपने आप को अलग किया। If it was a particular instance that was 3 days back, it was 3 months back, even if it was 3 years back or even 30 years back, you have to go all the way back to that particular instance. Where did I go off track? Where did I get derailed? So that the presence of God that I used to experience, I'm not able to experience today. और चाहे वो पल, चाहे वो 3 दिन पहले हो, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल या फिर 30 साल पहले भी ऐसा एक घटना या ऐसा एक जगह आया जहां पर हमने परमेश्वर से अलग होकर कुछ किया, तो वापस उस जगह पर जाकर उसका सुलह करना जरूरी है। But here in Jonah's case, immediately we see in verse 4, but the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. लेकिन योना के कहानी में या फिर योना के जीवन में हम इस प्रकार से देखते हैं, चौथा आयत 1:4 में लिखा है, यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। Sometimes when great winds come our way, we don't understand what's going on.
और कई बार जब ऐसे आंधियां हमारे जीवन में भी आते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, तब हम भी नहीं समझते तो ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। Sometimes we complain, the devil is after me, he's continuously disturbing me, one wind after another, one storm after another. और हम कई बार एक दूसरे से इस प्रकार से कुड़कुड़ाते हैं या फिर इस प्रकार से हम शिकायत करते हैं कि शैतान तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है, मैं चाहे कुछ भी करने के लिए अपने पैर बढ़ाऊं वो अड़ंगा मारता है। Sometimes those winds are sent by the Lord because he cares for us and he really wants us to come back to his presence. लेकिन हमें समझने की बात यह है कि वो सारे आंधियां कई बार परमेश्वर उनकी अनुमति इसलिए देता है क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है और उसको हमारी चिंता है। And we know that all the sailors were so afraid, they were crying out for their lives and they were so fearful, exceedingly afraid, it says in verse 10. और 10वें आयत में हम देखते हैं कि जितने भी उस जहाज में थे, जितने भी मल्लाह उस जहाज में थे, वो बहुत अत्यंत भयभीत हुए, डर गए थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। You know, when they realized that Jonah is the reason for all of this, they're asking him a question in verse 8. Please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation? Where do you come from? What is your country and of what people are you? और जब चिट्ठी डालकर योना के नाम पर निकला तब उन्होंने 8वें आयत में इस प्रकार उससे कुछ सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। You know, if one person in the crowd who has run away from the presence of God is a pain and fear for all the rest of the crowd. और ये बात भली भांति समझने की बात है कि एक बंदा, एक आदमी, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के उपस्थिति से भाग गया है, वो सारे जहाज के लिए दर्द का कारण बन गया है। You know, they are crying out for their lives. और वो लोग अपने जीवन के लिए, अपने जान के लिए रो रहे हैं, पटक रहे हैं, बिलक रहे हैं। And they realize that unless they find a solution, they are not going to be coming out of this massive storm. और जब तक उनको इस चीज का एक हल ना निकले, तब तक वो इस बाढ़ में से, इस आंधी में से बाहर नहीं आ सकते। You know, they tried to rescue Jonah, but it came to a point where they couldn't do anything. At the end, they just decided to throw him out. और उन्होंने अपने बस में सब कुछ किया कि योना का जान को किसी तरह बचा ले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये आंधी रुकता ही नहीं, तो सब कुछ हार कर उन्होंने योना को उठा के समुद्र में फेंक दिया। But you know, I always appreciate we have to look up to the kind of mind and the good heart that these people had on the ship. और ये बहुत ही दाद देने की बात है कि उस जहाज में जितने लोग हैं, उनके जो विचारधारा और उनके मन की भलाई बहुत ज्यादा अच्छा था। In verse 14, after they had, just before they were going to throw him, और 14वें आयत में वो योना को उठाकर समुद्र में डालने से पहले इस प्रकार कहते हैं, they cried out to the Lord and said, "We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with innocent blood, for you, O Lord, have done it as it pleased you." और वहां यहोवा से वो विनती करते हैं, यहोवा हम विनती करते कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराना, क्योंकि यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। And then verse 16 it says, "Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows." और 16वें आयत में जब ये सारा आंधी थम गया, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। See, a person who knows God of Israel, who knows he's a God, he's a man who's called to serve the God of heaven, who made the sea and the dry land, he is not aware about how bad his condition is, but people around him are really fearing the Lord, and even they are offering a sacrifice to the Lord. और यहाँ एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, उसको जानता है, सारे सृष्टि को, सारे आकाश और भूमि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सेवकाई करता है, जिसका वचन लेकर उसको भेजा गया था। उसको इस बारे में मालूम नहीं कि वो कितना ही दुष्टता या फिर कितना ही बुरे अवस्था में पड़ा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग जो परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते थे, वो परमेश्वर के सामने बहुत ही भय
भय भक्ति के साथ अपना जीवन को रखते हैं, समर्पण करते हैं, आराधना करते हैं। See, there are multiple points of checkpoints that God has in Jonah's life. और योना के जीवन में इस प्रकार परमेश्वर ने चेक पॉइंट के नाम एक जगह जहां पर आपको विश्लेषण करना ऐसा रखा है। First checkpoint, when he took the ticket to Tarshish and he's going out of the presence of the Lord, immediately the Lord acts. और पहला चेक पॉइंट या पहला विश्लेषण का जगह वो था जब उसने तरशीश को जाने वाले जहाज के लिए अपना टिकट काटा। The Lord doesn't leave him there, he immediately sends a storm. और परमेश्वर की आत्मा उसको वहां नहीं छोड़ते, वो तुरंत एक आंधी को उसके पीछे लगा देता Now, है। after he's now thrown into the sea, immediately God's second checkpoint here. Now, the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. और दूसरा चेक पॉइंट या विश्लेषण का जगह वो है जहां पर जब लोगों ने उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया, उस समय परमेश्वर ने एक बड़े से मछली को योना को निगलने के लिए भेजा। You just imagine how amazingly the coordination that God of heaven is working to get just when a man is thrown out of the vessel in the midst of waves and storms and wind and all of that, you know, a fish that is so perfectly controlled and orchestrated so that even before Jonah can go down into the waters, it just opens its mouth and, you know, like how the basketball works, just catches him directly inside the room that is prepared for him. और कितना ही अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो यहाँ पर भी अपने हाथों से उस चीज को संभाले रहता है कि किस प्रकार योना का प्राण उस समुद्र में धंसने से पहले या फिर उसमें डूब मरने से पहले उसको सहने लायक या उसको पकड़कर अपने पेट में रखने लायक एक बड़े से मछली को तैयार करके, इससे पहले कि योना उस जहाज में से गिराया जाकर उस समुद्र में डूब जाए, उसको जाकर निगल लेता है। You know, now the situation is very different. Jonah cannot sleep anymore. और यहाँ पर अभी जोना का हालत इतना खराब हो चुका है कि अब सो नहीं सकता। You know, God has put him into a position where he has to cry and he has to pray. Nothing else he can do. यहाँ पर ना वो हिल डुल सकता है, इसके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, सिर्फ इसका मुंह चल सकता है और ये सिर्फ प्रार्थना और रो सकता है। Maybe on the ship he could have looked outside the window, but now there is no more windows to see what's going on अभी तक outside. वो जहाज में बैठ के बाहर शीशे में से बहुत अच्छे नजारे देख रहा था, लेकिन अभी सिर्फ उसके इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। But you know, I am amazed, even though he doesn't have any view of what is going on outside, in Revelation, he's actually speaking about what's going on outside, deep down in the deep sea. और यद्यपि योना के आसपास पूरा अंधेरा छाया हुआ है, वो उसे बाहर का दुनिया के बारे में कुछ नहीं दिख रहा, फिर भी वो प्रकाशन में दर्शन में देख रहा है कि समुद्र के गहराइयों में क्या क्या हो रहा है। His prayer life completely transformed. और उसके प्रार्थना जीवन पूरी तरह से यहाँ बदल गया। Look at the revelation he's saying in verse 6. और 6वें आयत में उसको क्या प्रकाशन मिल रहा है? I went down to the moorings of the mountain, the earth and its bars closed behind me forever. Yet you have brought me up my life from the pit, O Lord my God. मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। He's not only seeing the circumstances that is happening just outside the fish, he's also prophetically saying that now you are about to bring me out from the pit into the life. He's prophetically saying what's going to happen to him. और योना सिर्फ अपने जीवन में होने वाले अभी के उस तकलीफ के बारे में ही नहीं बोल रहा, वरन वहां पर रहकर भविष्यवाणी के तौर में यह भी कह रहा है कि किस प्रकार परमेश्वर उसको उस अवस्था में से खींचकर बाहर निकालने वाला है। Now we are going to focus on the prayer. In fact, in my Bible it says Jonah's prayer and deliverance. और परमेश्वर का दास योना का प्रार्थना के बारे में अभी हम कुछ समय ध्यान देने जा रहे हैं। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है योना का प्रार्थना और उसका छुटकारा। Dear ones, this evening we are here for healing and deliverance. प्यारो भाइयों बहनों, हम यहाँ पर इस शाम को हमारे चंगाई और छुटकारे के लिए यहाँ पर आए हैं। Dear ones, there is nobody who says that I don't need healing, I don't need deliverance. Everybody need healing and deliverance, either in the soul, either in the spirit, or in the body, or any areas of our lives.
God knows it, and we sometimes understand it to a certain extent. और ऐसा कोई भी यहाँ पर बैठा नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे चंगाई और छुटकारे की जरूरत नहीं है। किसी को शरीर में, किसी को प्राण में, किसी को आत्मा में, किसी को बुद्धि में, किसी को जीवन के अलग अलग तल में, अलग अलग जगहों में, स्तरों में चंगाई और छुटकारे की जरूरत है। A disobedient prophet is now being transformed into a powerful prophet who has revelation and who has clarity of what God is going to do for his life. और अभी तक हम देख रहे थे एक ऐसे अनाज्ञाकारी भविष्यवक्ता के बारे में जो परमेश्वर से दूर तो भाग गया था, लेकिन अभी एक रूपांतरण पाकर परमेश्वर के द्वारा सशक्त किया गया हुआ और उसका वचन का सामर्थ और आने वाला उस वो रूपांतरण को किस प्रकार से वो देखेगा, इसको कहने के लिए योना अपने आप को यहाँ तैयार कर रहा है। You know, one thing I like about this chapter 2 is it's a prayer that works. और इस दूसरे अध्याय के बारे में जो मुझे सबसे बढ़िया अच्छी चीज लगता है वो ये है कि ये प्रार्थना काम करता है। You know, there's only 10 verses. इसमें सिर्फ 10 आयतें हैं। And the first verse is an introduction. The verse 10 is the ultimate result. और उसमें से पहला जो आयत है वो इस प्रार्थना का इंट्रोडक्शन है या उसकी भूमिका है, और 10वां आयत वो ये है कि प्रार्थना के बाद योना के जीवन में क्या हुआ। 8 verses is the Jonah's prayer. और योना का प्रार्थना मात्र 8 आयतों का है। That prayer that extend to 8 verses did it. It did the miracle. और सिर्फ 8 आयत में योना को उसके जीवन में एक आश्चर्यचकित करने वाला काम दिखा। That's what we are going to focus this evening. और वही आज का हमारा विषय है। And I believe if Jonah's prayer worked, if we will follow Jonah's model of prayer, the Lord will answer our prayer. और मेरा विश्वास पूरी तरीके से यह है कि अगर योना के प्रार्थना करने से परमेश्वर ने सुना है, तो वाकई में योना का किया गया उस प्रार्थना को हम भी अपने जीवन में नमूना बनाए तो हमारे प्रार्थना में वाकई में परमेश्वर सुनकर उत्तर देगा। You know, Bible has many significant prayers that has been recorded in the Bible. और परमेश्वर के कलाम में अलग-अलग जगह पर बहुत बड़े-बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं हैं। There are prayers of great men of God, Elijah, Paul, and likewise. बहुत सारे बड़े-बड़े लोग, संत लोग परमेश्वर के जैसे एलिया और पौलुस है, उनके प्रार्थनाएं भी है। But you know, today we are actually looking at a prayer of somebody who failed God, who was disobedient to God, who went away from the Lord, and still God had mercy and He answered. लेकिन आज हम इस एक ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना को बारे में पढ़ने जा रहे हैं या उसको देखने जा रहे हैं जिसने परमेश्वर को निराश किया, जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा, जिसने परमेश्वर के सीधी व्यवस्था को, सीधी बात को उल्लंघन किया, फिर भी परमेश्वर ने ऐसे एक निकृष्ट आदमी के ऊपर दया कर उसकी प्रार्थना को सुना। So the first part of the prayer, let's look into verse 2, and he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and He answered me. और दूसरे आयत के दूसरे अध्याय के दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। Out of the belly of the Sheol I cried, and you heard my voice. अधोलोक के पेट में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। Dear ones, Jonah's prayer was not a very formal, studious prayer. It was a cry from the depth of his heart. और प्यारे भाई बहनों, योना का प्रार्थना बहुत ही बड़े-बड़े शब्दों से भरा हुआ नहीं था, लेकिन वो अपने संकट में से, अपने दिल की गहराइयों से किया गया हुआ एक प्रार्थना था। He acknowledged that he is as good as dead. और उसने सबसे पहले तो ये मान लिया कि मैं तो मरा हुआ ही हूँ, मरे हुए के It's समान हूँ। as if like that the whole world has closed over before और me. उसने ये बात मान लिया कि इस पूरी दुनिया की जितने भी मदद और उम्मीद है सब बंद हो चुका है। But I cried out not just to myself. Sometimes people just cry in self-pity, but here the word says, I cried out to the Lord because of my affliction. योना अपने ऊपर हमदर्दी नहीं जता रहा। कई बार लोग ऐसे करते हैं कि वो अपने ऊपर ही हमदर्दी जताते हैं, लेकिन यहाँ योना कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। I cried out to the Lord. मैंने यहोवा की दुहाई दी। Dear ones, it's not easy for humans like us to cry. हमारे लिए रोना आसानी से शायद नहीं आता, Because we are people who, we kind of carry ourselves as we are strong human beings. और हम अपने आप को बड़े ही शक्तिशाली मान के चलते हैं। But in life's certain situations, लेकिन जिंदगी के कई अवस्थाओं में we have to come to the feet of the Lord and be broken. हमें परमेश्वर के उपस्थिति में उसके चरणों पर आकर सिर्फ
टूट जाने देना चाहिए। The Bible says he's close to the brokenhearted. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। He comes so close to the brokenhearted and heals such as have a contrite spirit. और जिनके आत्मा संकट में है उनको आकर वो तसल्ली देता है, उनके घावों को भरता है। He cried out despite the fact that he's inside the belly of a fish. और योना जबकि वो जानता था कि वो महामच्छ के पेट में है, फिर भी वहां पर परमेश्वर के ओर रोया। That's something that very important that we have to note. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने का है। Despite the fact that he is inside the belly of the fish, यद्यपि वो मछली के पेट में पड़ा हुआ है, he has a faith deep inside of him. उसके अंदर इतना बड़ा विश्वास है, Even if I cry from the belly of the creation, there is a creator up there who will listen to my prayer. मैं अगर इस बड़े सृष्टि के पेट में पड़ा होकर रोऊं, तब भी इस सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है जो मेरे प्रार्थना को सुनेगा। You know, the very fact that he has not yet suffocated and died because of all the digestive fluids that's in the belly of the fish is a miracle that God has not given up on him. और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात ये है कि मछली के पेट के अंदर के जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्य है, उसके अंदर गलकर ये मरा नहीं। यही बात सबसे बड़ी सबूत है कि परमेश्वर ने अभी तक योना के जीवन में काम करना बंद नहीं किया। It is true that he has been through storms, winds and waves. और ये इस बात सच है कि तुम आंधी तूफान सब में से होकर गए। If he had to die, he would have definitely been dead when they threw him out into the water. और अगर तुम्हें मरना ही था तो तुम जब तुम क्या कहते गिराए गए थे, जब तुम समुद्र में फेंके गए थे, उसी समय मर जाते। Out of all those people who have been thrown into the storms of the oceans, out of that, has there ever been such a miracle that a fish that has been prepared and commanded by the Lord had just opened its mouth to receive Jonah into? और जहाज से गिराए हुए लोगों का जो इतिहास उठाकर देखें तो क्या वहां पर हम कहीं ऐसा एक आश्चर्यचकित करने वाली बात देखते हैं कि एक मछली आकर किसी को निगल गया? So he realizes that the very fact that I'm still alive is because out of all the odds, I'm still alive because there was a fish that was just waiting to swallow me just when they threw me out. और योना ने ये बात भली भांति समझ लिया कि मैं अगर जिंदा हूं और मैं यहाँ पर इस अवस्था में भी, इस मछली के पेट में भी जिंदा होकर बचा हूं, तो परमेश्वर की करुणा हुआ है क्योंकि उसने बिल्कुल सही समय पर उस मछली को भेजकर मेरा प्राणों की रक्षा किया। Dear ones, the Lord is reminding me, when each one of us, if we will look back into your life, think about all the ways in which the Lord has rescued you. If it was not for a miraculous, divinely orchestrated deliverance project, assignment that God in heaven had directly pulled it off so perfectly, you and me wouldn't have been here alive this evening. और अपने जीवनों में हम भी अपने जीवनों में एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो कितने ऐसे घटनाएं हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जहां पर हमारे प्राण भी इस तरह झोंककर बैठ सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर अपने क्या कहते हैं अपने आत्मा के अगुवाई से इस प्रकार हर चीज को बदला कि उसने आज के दिन देखने के लिए हमें जिंदा रखा। The world will say, oh, it was by chance. और दुनिया कह सकते हैं कि ये सब एक इत्तेफाक की बात है। But you know, arithmetics and scientific calculations will say it's permutations and combinations. You know, it's some kind of a very rare possibility that something like that could happen, but it could happen. और शास्त्रीय जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, वो अपने सारे गणित को लगाकर इस प्रकार से कहते हैं कि इस बात की संभावना होना ना के बराबर है, अगर हो भी गया तो भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम संभावना है। Brothers and sisters, I want to tell you, we are not alive by chance. We are here because God has been mindful of us. He rescued us from death. He delivered us from so many dangers that we came face to face. And if you are here this evening, it's because He has chosen us and He has a purpose for us. और प्यारे भाइयों बहनों, हम यहाँ पर इत्तेफाक से बैठे नहीं हैं, वरन परमेश्वर ने हमें अपने प्राणों के नाश से और उसके मृत्यु से बचाया है, और जितने भी तकलीफें अभी तक आ सकते थे हमारे जीवनों में, उनमें से हर एक में से हमें बचाकर आज शाम यहाँ पर उसकी नाम की महिमा के लिए, उसकी इच्छा के लिए रखा है। So this faith inside Jonah prompted him, instead of going into self, what do you call, a depressive mode,
mode, a mode of, just waiting for the end to come. Instead, he decides that I'm going to cry out. I'm going to cry out to the Lord because I see that there is a probability. I see there is a possibility, because if such a great miracle has happened that I'm still alive, I see that there is a possibility that God wants to totally bring me out and rescue me out of this great danger that I'm stuck right now. और यहाँ पर योना के प्रार्थना करने का विश्वास ही यही है कि उसने देखा कि अगर मैं ये सारे आंधियों में से गुजर कर अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर अभी भी जिंदा हूँ, इस मछली के पेट में भले ही सकरा अवस्था हो, सकरा जगह हो, फिर भी अगर मैं जिंदा हूँ, मैं एक संभावना देखता हूँ कि परमेश्वर मुझे यहाँ से छुड़ाकर, छुटकारा देकर इसके पेट के बाहर ले आएगा. And Jonah had an assurance. Even in verse 2 we see when he cried out, he says that you heard my voice and he answered me. और दूसरे आयत के पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली. ये उसका भरोसा था. Dear ones, how many of you have that confidence that when I pray, I've got a God up there who hears me? और कितने लोगों के पास आज ये भरोसा है, विश्वास है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तब परमेश्वर वाकई में सुनता है. Demons, the devil will lie to you again and again that your prayer is not going anywhere. और हमारे प्रार्थनाएं कहीं पर भी नहीं जाने वाले. But I want to tell you this evening, the Lord's Holy Spirit is reminding you from this word, if Jonah had that faith that my prayer is getting up there, my voice is being heard by the Lord, I can tell you our prayers are getting there. और परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाना चाहता है, अगर योना का प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, अगर योना के आवाज को परमेश्वर उस जगह में से सुन सकता है, तो वाकई में आज जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, वो हमारे प्रार्थनाओं को भी निश्चय सुनेगा. And then verse 3 he says, for you cast me into the deep, into the heart of the seas. तीसरे आयत में लिखा, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के था तक डाल दिया. He acknowledges that it is no one else, it's not the sailors, it's not the co-passengers, it is not the storm, it is nothing else. I see the hand of God in what I'm going through. और योना वहां पर देखता है कि और ये बात भली भांति समझ जाता है कि उसके साथ के जो सहयात्री या जो जहाज के जो मल्लाह थे, उसके कप्तान थे, उन्होंने नहीं है जो योना को इस पानी में समुद्र में डाला, वरन परमेश्वर के द्वारा इस बात की अनुमति दी गई थी. He acknowledges that the heart, I'm deep down under and the flood surrounded me, your billows and your waves passed over me. और वो कहता है, मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई. Stop telling that it's because they did it, it's because someone else did that, my family did this, my brother did this, my sister did this, my children did it, my parents did it, and that's because I ended up here. Not because of anyone else. You are there because God's hand, sovereign hand of God is upon your life. और हम इस बात में हम लोगों को इस प्रकार से भला बुरा कहना बंद कर दे कि मेरे पिताजी के कारण, मेरे माताजी के कारण, मेरे भाई बहनों के कारण, मेरे अजीज गणों के कारण, मेरे दोस्तों के कारण मैं इस अवस्था में फंस गया. नहीं नहीं नहीं, एक बार मुड़ के देखो, परमेश्वर का महाप्रभुता का हाथ है जिसने यहाँ तक हमें यहाँ तक खींच के ले आया है. And then even during that time he is able to describe in detail the kind of external natural environment that is going on around him. और वहां पर उस सकरे अवस्था में भी योना अपने इर्द गिर्द होने वाले अवस्था को बहुत बारीक तरीके से उसका विवरण वर्णन कर पा रहा है. And then when coming to verse 4, चौथे आयत में आते हुए we see here, हम देखते हैं, then I said, I have been cast out of your sight. तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, yet I will look again toward your holy temple. कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा. Dear ones, a very important word. एक बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन. I have been cast out of your sight. मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ. You kind of threw me out of your sight. तूने मुझे अपने उपस्थिति से निकाल दिया है. It's a hopeless situation. ये बहुत ही निराशाजनक अवस्था है. There is nothing else to look forward to. आगे को कोई उम्मीद ही नहीं है. But look at the word. लेकिन वहां देखिए, yet I will look again toward your holy temple. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा. Yet I will look again.
मैं तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। Dear ones, sometimes we come to feel this that maybe God has given up on me. और कई बार हम अपने मन में इस प्रकार से सोच भी ले कि शायद परमेश्वर ने मेरे को छोड़ दिया है, Maybe I have disappointed him so much that he has actually given up on me. और मैंने शायद परमेश्वर को इतना दुखी कर दिया, इतना निराश कर दिया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से अपना हाथ धोकर बैठा है। That may be true, और हो सकता है कि यह सच हो, but this word gives us a possibility. लेकिन ये वचन एक बात की संभावना तो खड़ी करता है। This gives us a new probability, a new potential that the Lord is still waiting for you to look, that you will look back again into his holy temple. और यहाँ पर हम इस बात की संभावना को देखते कि परमेश्वर वाकई में हमारे और ताक कर बैठा है कि कब हम वापस मुड़कर परमेश्वर की उपस्थिति, उसके पवित्र उपस्थिति को देखेंगे। Hallelujah. It's a cry that is rising in front of the Lord's और presence. परमेश्वर की उपस्थिति में एक आदमी का विलाप है जो यहाँ पर उठ रहा है। And he is confident that despite the fact that I have probably burned up all the bridges, I still have a possibility. और योना इस बात को समझ रहा है या उस बात को एक संभावना को वो यकीन मान रहा है कि भले ही मैंने सारे पुलों को जला दिया है, फिर भी मेरे पास एक उम्मीद अभी भी है। Hallelujah. He had a faith inside his heart उसके जीवन में, उसके दिल में एक विश्वास था that I know that my God is a God of second chances. कि मेरा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। I have messed it up once, I messed it up again. और मैंने बहुत बड़ी तरीके से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार इस प्रकार परमेश्वर को निराश But किया, still the Lord is giving another chance. लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे को फिर मौके दे रहा है। That confidence that he's hearing my prayer, that itself is a proof that God is opening up that chance before your life. और ये बात, ये विश्वास कि परमेश्वर उसको छुड़ाएगा या उसको बचाएगा, और इस बात को लेकर जो वो प्रार्थना करता है, यही उसका सबसे बड़ा सबूत है या सांत्वना है कि हाँ, परमेश्वर वाकई में उस वक्त उसके लिए काम कर रहा है। Dear ones, he is praying all of this where? Deep down in the belly of the fish. प्यारो, ये कहां पर ऐसे प्रार्थना कर रहा है? उस महा मछली के, इस बड़े मछली के पेट में। Just imagine all those words have been taken by God and recorded in the scriptures for our spiritual edification. और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि उसके सारे बातों को उठाकर परमेश्वर ने इस कलाम में इसलिए रखा कि इसके द्वारा हमारे आत्माओं को परमेश्वर की उपस्थिति में नया और ताजा बनाया जाए। This prayer gives us an understanding that there is no depth to which any human can go where God cannot hear his prayer. और परमेश्वर के वचन के अंदर हमें ये भरोसा, ये आशा मिलता है, ये विश्वास मिलता है कि ऐसा कोई भी गड्ढा नहीं है, ऐसा कोई गहराई नहीं है कि हम चले जाए और परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ ना आए। There are a few other verses I want to tell. Psalms 18:5 and 6 says, और भजन संहिता उसका 18 उसका 5 और 6 में लिखा है, somebody can read that. पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। Psalms 18:5 and 6 we just heard reading. I will just read it in English as well, or somebody to read. Yeah. In my distress, I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple, and my cry came before him even to his ears. We see a very similar situation where David is crying out to the Lord. और बहुत ही समान अवस्था यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ दाऊद भी वैसे ही प्रार्थना कर रहा है जैसे योना भी प्रार्थना कर रहा था। The sorrows of Sheol means he cannot see any hope.
in his circumstances. और पाताल की रस्सियां उसके चारों ओर थी करके जब वो लिखता है तो वो अपने तरफ अपने पास किसी भी तरह की आशा की वस्तु या बात को नहीं देख पा रहा था. Again, in Psalms 42, we see a similar situation. और भजन 42 में भी हम इस प्रकार से एक प्रार्थना को देखते हैं. In verse 6 and 7, और उसके 6 और 7 में, "O my God, my soul is cast down within me. Therefore, I'll remember you from the land of the Jordan and from the heights of Hermon, from Hill Mizar. Deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. All your waves and billows have gone over me." 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों, मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ. तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है. तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया. But verse 8 says, "The Lord will command his loving kindness in the daytime." लेकिन 8वें आयत में लिखा, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, रात को भी उसका गीत "And in the night गाऊंगा. his song shall be with me." और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना A करूंगा. prayer to the God of my life. और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा. Dear ones, when we see, when saints of God have gone through similar circumstances, total darkness surrounding them, all hopelessness around them, in the midst of that, when they cried to the Lord, they looked again towards the holy temple. There is a God who answered their prayer, a God who came to their rescue. और हम बाइबल के संतों के उनके जीवनों की इस प्रार्थनाओं को जब हम देखते हैं कि जब वो आशाहीन अवस्था में से होकर जा रहे थे, आशाहीन अवस्थाओं में होकर रह रहे थे और उनके पास किसी भी तरह का उम्मीद नहीं था, उन्होंने अपनी नजरें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की और उसके मंदिर की ओर लगाया और परमेश्वर ने वहां से उनके प्रार्थनाओं को उत्तर दिया. The word of the Lord says, "Call upon me in the day of trouble, और परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार and I will deliver you, and I will show you great and marvelous things." और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा. Dear ones, hallelujah, there is a stage where we call upon God, but there is a stage when we start crying out to the Lord. और हमारे पास ऐसे समय है जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और ऐसे भी समय है जहां हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं रोते हुए. This evening, let's pray that God will give us a special grace that we will start crying out to the Lord for a divine rescue to come through in our lives. और आज के शाम हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर एक ऐसा अनुग्रह हम पर करे कि हम सिर्फ पुकार नहीं रहे, वरन एक ऐसे दुहाई दे कि परमेश्वर का एक दैविक हाथ आज हमारे जीवनों में निकल कर आकर हमें परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से बचाए. In Jonah's prayer, we come back to Jonah chapter 2. There is something else that he included in his prayer. और योना उसके दूसरे अध्याय में फिर से आएंगे, वहां पर कुछ एक और बात है जो योना ने अपने प्रार्थना में कहा. In verse 7, he says, "When my soul fainted within me, I remembered the Lord." जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया. When my soul fainted within me. जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया. Dear ones, it's not the body that fainted. और यहाँ प्यारे भाइयों, यहाँ पर ये शरीर नहीं है जो चकरा गया या मूर्छा खा गया, But his very soul fainted. उसके प्राण ही उसमें से छूट रहे थे, वो मूर्छा खा गया. Just imagine the height of crisis that Jonah is facing. और जरा सोचिए कितने ज्यादा मुसीबत में योना भी पड़ा है. But in the midst of that, he's saying, "I remembered the Lord." लेकिन उस बीच में वो कहता है कि मैंने यहोवा को याद किया. When I hit the rock bottom, I remember the Lord. और जब मैं सबसे नीचे जगहों पे जाकर धंस गया तब मैंने यहोवा को याद When किया. I faced the darkest of the dark, I still remember the Lord. और अंधेरे से बढ़कर अंधेरे में जब मैं पड़ा हुआ था तब मैंने यहोवा को याद किया. When I'm seeing the impossibilities of the impossibility, I still remember the Lord. और मैंने असंभव से असंभव में अपने आप को पाया तब मैंने यहोवा की ओर ध्यान दिया. Because he is a sovereign God and he's a God who can turn around things even at the darkest hour. क्योंकि वो सदा प्रभुत्व रखने वाला परमेश्वर है, वो हर एक अंधकार को प्रकाश में बदलने का सामर्थ्य रखता है. And the second part of verse 7 says, "And my prayer went up to you into your holy temple." और उसके दूसरे पद में इस प्रकार 7 के दूसरे पद में लिखा है, मेरे प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई. Again, he is confessing the confidence that his
prayer is just getting to the right place. और यहाँ पर योना अपने पाया हुआ विश्वास को जता रहा है कि उसका प्रार्थना वाकई में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच रहा है। Dear ones, again this evening I want to reaffirm this fact that we have to conquer the constant lie that the devil kind of brings into your mind saying your prayer is not getting anywhere. और प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन हमें शैतान के उस झूठ से बाहर निकलना है या उस झूठ को ऊपर विजय पाना है जो हमसे कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना है परमेश्वर नहीं सुन रहा। The Bible says the God does not hear the prayer of the sinners. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों के प्रार्थना को नहीं सुनता। Dear ones, the Lord does not want any one of us to continue in the state of being a sinner. लेकिन ये बात भी सच है कि परमेश्वर हमें इस पापी या फिर पाप में होकर रहने की अनुमति नहीं देता या फिर उसमें जाने की इच्छा नहीं रखता। The purpose why the Father God sent His Son Jesus Christ into the world is to forgive us from sins. और परमेश्वर पिता ने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। If you confess and repent of your sin, there is a promise of God that is even alive this evening that the Lord will forgive your sins and He will wash you from all unrighteousness. और परमेश्वर का योजना या फिर उसका वायदा ये है आज रात भी हमारे लिए कि अगर हम अपने पापों को अंगीकार कर ले और मुंह से कहकर उसको छोड़ दे तो वाकई में वो हमें अपने पापों से हटाकर उसके लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए सामर्थी और विश्वास योग्य है। The Bible says in the book of prophet Isaiah says the hand of the Lord is not shortened that it cannot save. और भजन यशायाह नबी का पुस्तक उसका 58 में इस प्रकार लिखा, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो बचा नहीं सकता। Nor the ear of the Lord heavy that it cannot hear. ना वो ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन नहीं सकता। But it is your iniquities that has separated you from God. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर से हमें अलग कर सकता है। But it is your iniquities, it's those sins that is separating you from God so that God is not able to hear your prayer. और लेकिन ऐसा बातें जो अपराध के है जो हमारे जीवन में है वही हमें परमेश्वर के पास आने से रोकता है। Dear ones, this evening can we make a choice to say, Lord, I don't want any of my sin to stand in the way of my prayer reaching the holy temple, the very throne room of God. The minute I kneel down in prayer, the minute I close my eyes in prayer, my prayer has to reach the presence of God. और आज हम अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में इस प्रकार से रखकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कोई भी पाप का कोई भी ऐसी वैसी झुर्री कलंक की बात ना हो जो मेरे प्रार्थनाओं को आपकी उपस्थिति में पहुंचने से रोकते हैं। वरन जिस वक्त मैं घुटने टेकता हूं प्रभु मुझे वाकई में मेरे सारे प्रार्थनाएं आपके पास आता हुआ मुझे विश्वास है। You know, may not be all the words of Jonah's prayer is probably not mentioned here. और योना के प्रार्थना की सारी बातें शायद यहाँ ना लिखा हो। But one thing I believe, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ the very tears that he shed in verse 2, जो दूसरे अध्याय में जो उसने आंसू बहाए हैं, that tears were tears of repentance. वो सारे ही परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप के आंसू थे। Those tears summed up his true repentance from the depth of his heart. वो सारे आंसू उसके मन फिराव के आंसू थे। Hallelujah. Hallelujah. With that prayer of a repenting soul, heaven will not overlook, heaven will not ignore. लेकिन जब एक व्यक्ति मन फिराव करके उस पर प्रार्थना करता है, मन फिराव का प्रार्थना करता है, स्वर्ग वहां पर सुनता है और किसी भी हालत में स्वर्ग उसको अनसुनी नहीं करता। Now we are coming to the final part of Jonah's prayer. और योना के प्रार्थना का आखिरी भाग में इस प्रकार आते हैं। Verse 8 says, those who regard worthless idols forsake their own mercy. और 8वें आयत में लिखा, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। Yeah. So here, the Lord's word is very clear that regarding worthless idols, you cannot receive the mercy of God. परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ तरीके से कहता है कि व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने से, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने से करुणा नहीं मिलेगा। Dear ones, we need mercy from God who created heaven and earth. प्यारो, हमें परमेश्वर से जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसके हाथ से करुणा दया प्राप्त करना जरूरी है। Without mercy from God, we cannot survive. हम उसके दया के बिना नहीं जी सकते। He's an all-powerful God. वो सर्वशक्ति वाले परमेश्वर He है created everything by the power of His word. और अपने वचन के द्वारा उसने सबका सृष्टि किया। But when we try to put
the glory of God into certain images or idols that is humanly made. और लेकिन अगर हम उसी परमेश्वर की महिमा को अगर हम किसी तस्वीर में या किसी मूर्त में या किसी भी चीज में डालने का कोशिश You करें, know, that is the greatest insult for the God who created heaven and earth. वो उस महान परमेश्वर का जिसने सब कुछ को बनाया उसका अपमान है. You know, there is something that I explain about sometimes you imagine you get home after 1 year and your children have been waiting to see you. और मैं इस प्रकार से लोगों को समझाने के लिए ये उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ. मान लीजिए आप 1 साल बाद अपने घर जा रहे हैं और अपने बच्चों से मिलने के लिए, You are also going with great expectation to see them. और आप भी बड़े उम्मीद के साथ उनसे मिलने के लिए तो जा रहे हैं. You know, but when you reach the home, लेकिन आप जब घर पहुंचते हैं, you find out that your kids आप देखते हैं कि आपके बच्चे are very busy with a small photo frame. और वो एक छोटे से एक फोटो फ्रेम के इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा व्यस्त A हैं. picture that was taken 15 years back जो शायद 15 साल पहले लिया when you गया just था. graduated from college. और जब आप कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आए You थे, don't even look like how you look like now, और आप उसके जमाने मुकाबले अभी वैसे नहीं दिखते, but your children are so fascinated with that picture. लेकिन आपके बच्चे उस तस्वीर को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं. They are just, holding it so tightly to वो them, उस तस्वीर को बहुत अपने करीब रख रहे and हैं they're giving all the attention to it. और अपने सारे ध्यान को उसकी तरफ रख रहे हैं. As a father, as a mother, how do you feel? एक माता या पिता के नाते आपको कैसा लगेगा? This is how God Almighty feels when He expects His children to worship Him in spirit and in truth. When we are carried away with pictures or idols, it is a great insult to God Almighty who created us in His image. और सच में परमेश्वर भी शायद ऐसा ही महसूस करता है जब हम भी परमेश्वर के उपस्थिति में आने के बजाय या अपने ध्यान को उसके ऊपर रखने के बजाय इस प्रकार दुनिया के ऐसी वैसी व्यर्थ चीजों में अपने ध्यान को लगाते हैं. Now, if you do that, you're forsaking your own mercy. और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस दया को हम नकारते हैं. And then we are coming to the final word, verse 9, 9वें आयत में हम वापस the आएंगे. last part of the prayer. ये प्रार्थना का आखिरी भाग है. But I will sacrifice to you लेकिन मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा. with the voice of thanksgiving, and I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा. उद्धार यहोवा ही से होता है. Dear ones, Jonah is talking about something that he will do afterwards. योना कुछ ऐसा प्रार्थना कर रहा है जो वो अभी नहीं समझता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही समझेगा. No, what he will do later. जो वो बाद में करेगा. He's saying, I will sacrifice. वो कहता है मैं धन्यवाद का साथ बलिदान चढ़ाऊंगा. I will pay what I would. जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा. So he's not able to do that right now. और वो ये दोनों बातें अभी नहीं कर पा रहा. But he is making a decision, he's making a commitment that, a day is coming when you will bring me out of the belly of the fish, that I'm gonna do this. और वो इस प्रकार से आने वाले दिन के लिए इस प्रकार से परमेश्वर के सामने एक मन्नत मानता है कि प्रभु मैं जो कुछ भी बोला वो सब कुछ मैं करूंगा, क्योंकि तू मुझे इस मछली के पेट में से बाहर निकाल रहा है. Dear ones, this is something that we can learn from Jonah's prayer. ये हम परमेश्वर योना के इस प्रार्थना से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं. Not only that, there are many people, many saints of God who has done this during the times of their hardships. और बहुत सारे संतों ने इस प्रकार अपने तकलीफों में तंगियों में परमेश्वर के सम्मुख इस प्रकार बोला है. I want to remind you of one other person. मैं एक और व्यक्ति का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ. Hannah was under constant ridicule from her household. और हन्ना अपने ही घर में इस प्रकार बहुत ज्यादा मजाक का एक पात्र बन गई थी. Because Penina had a lot of children, Hannah didn't have children. क्योंकि पेनीना के पास बहुत सारे बच्चे थे लेकिन हन्ना के पास नहीं था. So Penina used to constantly poke her again and again. और ये पेनीना आकर उसको चिढ़ाती रहती थी कि तेरे पास बच्चे नहीं है, तेरे पास बच्चे नहीं है. And that kind of pushed her to come to the temple of the Lord one day and
and pour out her heart at the feet of God. और उस चिढ़ाए जाने के वजह से, सताए जाने के वजह से जब वो मंदिर में आए, अपने मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रोते हुए प्रार्थना किया. You know, one prayer that she did, that one prayer, और उसने एक ऐसा प्रार्थना किया, that prayer turned the trajectory of her life. उसका जीवन को, दिशा को ही उस प्रार्थना ने बदल दिया. Dear ones, one prayer that you will undertake today can turn around your life in a way that you cannot even imagine. और आज के दिन हम एक ऐसा प्रार्थना करेंगे तो शायद वो हमारे जीवन की दिशा को ही बदल दे. Her face was not dull anymore. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद उसका चेहरा कभी नहीं उतरा. Hallelujah. The Lord enlightened her. परमेश्वर ने उसके चेहरे पे रोशनी The डाला. Lord honored her. परमेश्वर ने उसका आदर किया. But you know, she made a decision during that prayer. उसने प्रार्थना में एक बात कहा, If you will give me a son, प्रभु तू मुझे एक पुत्र देगा, you know, I will bring him back to this मैं place. तुझे उसको वापस दे दूंगी And he will serve you throughout his और life. जीवन भर वो तेरे सम्मुख बना रहेगा. And that decision, और वो एक बात, that decision led to the miracle in Hannah's life. वो चीज हन्ना के जीवन में आश्चर्य कर्म में बदल गया. Because the very purpose why God, you know, allowed all that circumstances in Hannah's life is because God needed a Samuel. और परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में वो सारे बातों को, वो अपमान, निंदा, सब कुछ आने का अनुमति इसलिए दिया क्योंकि एक शमूएल को उसको ले आना था. A Samuel, a prophet who will be so powerful, a priest who will be so powerful, all he would be heard and he would be respected from Dan until Beersheba. और एक ऐसा शमूएल जो दान से लेकर बरशेबा तक बहुत ही आदर के साथ परमेश्वर की सेवकाई करेगा. But a decision that Hannah made during the prayer is, if you will give me that son, I'm going to give him back to you. लेकिन हन्ना का जो फैसला था कि परमेश्वर तू मुझे एक पुत्र को देगे, मैं उसको वापस लौटा दूंगी. And she was so true to her promise. और उसने अपने बात को रखा. Similarly, Jonah is making the commitment here. ठीक वैसे ही योना भी यहाँ पर एक मन्नत मानता है. I will pay what I word, salvation is of the Lord. मैं सब कुछ जो मैंने कहा है प्रभु उसको पूरा करूंगा क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है. Salvation is of the Lord. उद्धार यहोवा ही से होता Dear है. ones, there is salvation in no other. परमेश्वर के अलावा किसी और में उद्धार नहीं मिलता. The Bible says there is no other name given among men that you can be saved. परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु के अलावा और कोई नाम नहीं है जिससे मनुष्यों को उद्धार मिल सके. Under heaven, on the earth, underneath, there is no other name other than the name of Jesus Christ, through which we can be saved, our soul can be saved, and we will be eternally saved from eternal condemnation, eternal damnation, eternal punishment because of Jesus and the sacrifice that Jesus did on the cross of और Calvary. वाकई में आकाश के नीचे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, पाताल में, मनुष्यों के बीच में यीशु के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया जिसमें सारे इंसानों को जो उस पर विश्वास करते हैं उनको अनंत काल के आग से दूर होकर, आग की झील से होकर अनंत जीवन मिल सके. The message that heaven gave Mary was, you will call him Jesus because he will save them from their sins. और इस प्रकार मरियम के पास दूत ने आकर बताया कि तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. Even today, salvation belongs to the Lord. और इसीलिए आज भी सारा उद्धार परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से ही होता है. And as he finished this prayer, और जैसे ही उसने ये प्रार्थना पूरा किया, immediately verse 10, 10वें आयत में लिखा है, so the Lord spoke to the fish, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी, and it vomited Jonah उसने योना को स्थल पर उगल दिया, onto dry land. उसने सूखी भूमि पर उसको उगल दिया. Hallelujah. The Lord who spoke to the fish to swallow Jonah also spoke to the fish to put him out. जिस परमेश्वर ने मछली से कहा था कि तू जाके योना को निगल ले, वही परमेश्वर वही मछली से कह रहा है कि अब तू जाके इसको उल्टे कर उगल दे. He spoke
to that fish to create that crisis, he will speak again to the fish so that you will come out of that crisis. और अगर परमेश्वर उस मछली से कहकर तुम्हें मुसीबत के उस जाल में वहां पर डालने का अनुमति दे सकता है, तो वाकई में वो परमेश्वर उसी मछली को बोलकर तुम्हारे उस तकलीफ में से तुझे बाहर भी ले आ He सकता है. prepared that storm to do a process inside of you, and once he has done it through, he will again command the storm to be still. और अगर वो आंधी में से होकर तुझे गुजरने देता है ताकि तुम्हारे हृदय में एक परिवर्तन हो, तो जैसे ही वो परिवर्तन पूरा हो जाता है, वो उस आंधी को थमने का आज्ञा दे देता I है. want to just tell you, there is no fish on this planet that will disobey the voice of the God, the Creator God. और ये बात भली भांति समझ लो कि परमेश्वर जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया, उसके आज्ञा को उल्लंघन करने वाला एक भी मछली इस धरती पर नहीं है. I want to tell you prophetically that there is no virus on this human race that will disobey the voice of the living God. और मैं ये बात भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे ऊपर आने वाले परमेश्वर के आज्ञा को रोक सकता Hallelujah. है. There is no virus, there is no bacteria, there is no, disease, there is no cancer, there is no tumor that will disobey the voice of the Creator और God. ऐसा कोई कीटाणु नहीं है, ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करे. There is no medical condition that will disobey the voice of the Lord. और ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो परमेश्वर के आवाज के विरोध में जाए. There is no mental condition that will disobey the voice of the Lord. और ऐसा कोई मानसिक तनाव नहीं है जो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करे. There is no physical condition that will disobey the voice of the Lord. और ऐसा कोई शरीर के तकलीफ नहीं है जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में जाए. But to trigger that voice of God for your life, लेकिन वो आवाज हमारे जीवन में प्राप्त करना है तो hallelujah, a prayer has to reach the holy temple. एक प्रार्थना को पवित्र पर्वत पर जाना पड़ेगा. Hallelujah. Not somebody else praying for us. कोई और हमारे लिए प्रार्थना करे ऐसा नहीं. Hallelujah. We praying for ourselves. हम अपने लिए प्रार्थना करना We है. crying out to the Lord. हम परमेश्वर से दुहाई देना We है. acknowledging to the Lord where we have faltered. और हम परमेश्वर के सामने मान ले कि प्रभु हम कहाँ गिरे हैं. We just confessing to the Lord that we have failed. और हम परमेश्वर के सामने ये मान ले कि प्रभु मैं वाकई में यहाँ पर हार गया, हताश हो गया. But praying with the confidence that even now, the word that says, I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy और temple. वहां पर चौथे अध्याय में लिखा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो Despite भी मैं तेरे पवित्र Despite the मंदिर की ओर fact that there is देखूंगा. no possibility, I have been thrown out and there is no possibility I can ever look back that temple. और क्योंकि मैं निकाल दिया गया, इसका कोई संभावना नहीं है कि मैं बचाया जाऊं, फिर भी मैं तेरी ओर ताकूंगा. Yet I will look again toward your holy temple. मैं तेरी ओर, तेरे मंदिर की ओर ताकूंगा. So the Lord spoke to the fish. और परमेश्वर ने मच्छ को आज्ञा दी. And it did not just vomit him anywhere. और उसने सिर्फ ऐसे ही कहीं पर भी जाके उगला नहीं. It could have thought that, I just swallowed him from the middle of the sea. I will just put him back into the middle of the sea. और वो मछली शायद सोचा भी होगा कि शायद मैंने तो इसको समुद्र के बीच में से उठाया, इसको समुद्र में ही निकाल देता हूँ. The fish just vomited Jonah in the exact location that heaven had fed into its brain, a location where Jonah can just rise up and walk to Nineveh. और परमेश्वर के आत्मा ने जिस प्रकार उस मछली के दिमाग में डाला और जिस जगह पर परमेश्वर के आत्मा ने उस मछली को आज्ञा दिया कि उसको निकले, ठीक वहीं पर योना को उसने उगला कि योना वहां से उठकर चले The जाए. very destination that you were trying to run away from, the Lord has commanded the fish to put you right in that destination where He wanted you to come. और परमेश्वर हमें उसी गंतव्य में पहुंचाएगा उस मछली के द्वारा जिस गंतव्य से अभी तक हम भाग रहे The थे. very place where you ran away from the presence of the Lord, the fish is going to put you back into a place where the presence of the Lord will still be there for you. और परमेश्वर का उपस्थिति जहां पर है, ठीक वहीं उस उपस्थिति वाले जगह में परमेश्वर के आज्ञा से वो मछली वापस डालेगा. Hallelujah. A Hallelujah. place where you will be ready to enter into your assignment. उस जगह जहां पर परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ उस कार्य को करने के लिए तुम तैयार हो जाओगे. A place where you will be able to fulfill the decision, the vow that you had taken when you were in trouble.
और जब तुम मुसीबत में थे, जब तुम तकलीफ में थे, उस समय माना हुआ मन्नत को पूरा करने लायक उस जगह पर परमेश्वर तुम्हें भेजेगा। Can we close our eyes in prayer? क्या हम अपने आंखों को बंद करें? Can we pray as Jonah prayed? क्या हम योना के न्याय प्रार्थना कर सकते हैं? Hallelujah. At the end of the prayer, the Lord commanded the fish. प्रार्थना के अंत में परमेश्वर ने उस मछली से कहा, Hallelujah. This day, the Lord is ready to command to our storms, और to परमेश्वर command to the waves and billows that is going over our heads. और परमेश्वर आज के दिन हमारे सर के ऊपर से जाने वाले हर एक लहरों के, हर एक बड़े मछलियों को आज्ञा देने के लिए तैयार है। Where did we get out of the presence of God? और जब हम इस तकलीफ में परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आए, Where did we disobey the voice of the Lord? हम जहां पर उसको अनाज्ञाकारिता दिखाए, Where did we take the wrong turn? और कहां पर हमने परमेश्वर से अलग होकर एक गलत जगह की ओर मुड़ गए। The Lord wants to bring us back to that point. और परमेश्वर हमें उस जगह पर आकर देखने के लिए कहता है। He wants to restore what was lost. और परमेश्वर जो हमसे खोया है उसको वापस देने के लिए आज तैयार है। Hallelujah. He wants to bring you back to the destination that was originally meant for you. और परमेश्वर हमें उस गंतव्य की ओर लाने के लिए तत्पर है जहां पर उसने हमें सबसे पहले चुना था, भेजा था। You know, He has kept you alive such a miraculous way. You know, the minute a fish would swallow a human, for the human to be alive is a miracle. और उस मछली के निगलने के बाद अगर योना बच गया है तो वो अपने आप में एक बड़ा बात है। Hallelujah. You are still alive because God has greater miracles that He wants to do in your life. और परमेश्वर इसीलिए उसको जिंदा बचाया क्योंकि उसके जीवन का अंत अभी हुआ नहीं, उसके जीवन के द्वारा जो भी करना था वो अभी भी बाकी है। There are hundreds of thousands of people that is waiting for you on the other side. क्योंकि यहाँ पर ऐसे हजारों ऐसे लोग हैं जो आपके उस जगह पर, उस गंतव्य पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। Unless Jonah reaches there, और जब तक योना नहीं पहुंचेगा and he preaches the message of repentance, और वो वहां पर जाकर मनफिराव का प्रचार नहीं करता, this land is going to be destroyed. ये निनवे का अंत हो जाएगा। God's anger is going to, the wrath of God is going to be poured out upon Nineveh. और परमेश्वर का क्रोध अग्नि उस निनवे शहर के ऊपर आ पड़ता। The transformative miracle God does in our life is going to be the rescue of many souls who would otherwise die because of the wrath of God. और हमारे जीवन में आने वाला रूपांतरण कई एक लोगों के लिए जो नाश की ओर बढ़ रहे हैं उनके जीवन को बचाने का कारण बन जाता है। Hallelujah. I want to reaffirm that confidence that there is a God who hears my prayer. और मैं आज के दिन आपको इस बात के भरोसे की ओर ले आना चाहता हूं कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थना को सुनता है। Can we just take this opportunity to start praying? Hallelujah. Not just praying with a formality, but just crying out to the Lord from the depth of our heart, just pouring out our heart at the feet of the Lord. क्या हम भी आज इस मौके को हम अपने हाथ में हथियार ले कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में सिर्फ बातों की बड़प्पन से नहीं परंतु हृदय की गहराइयों से निकलने वाले सच्चाई से प्रार्थना करें। Hallelujah. Like that blind man who called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. और उस अंधे बर्तिमाई की तरह जिसने पुकारते हुए कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। Hallelujah. Crying out from the depth of our heart. और दिल की गहराइयों से परमेश्वर की ओर दुहाई करें। I need a deliverance. प्रभु मुझे एक छुटकारे की जरूरत है। I need a spiritual deliverance. प्रभु मुझे एक आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। I need a psychological deliverance. प्रभु मुझे मानसिक छुटकारे की जरूरत है। I need a physical deliverance. प्रभु मेरे को एक शारीरिक छुटकारे की I जरूरत need an है। emotional deliverance. प्रभु मुझे एक भावनात्मक छुटकारे की जरूरत Lord, है। I need a financial deliverance. प्रभु मुझे आर्थिक छुटकारे की जरूरत है। I need a family deliverance. परमेश्वर मेरे परिवार को छुटकारे की जरूरत है। How many of you are ready to cry out to the Lord? कौन ऐसे प्रार्थना करने के लिए आज तैयार है? Hallelujah. Don't worry about who is on by your side. और ये ध्यान ना दे कि मेरे आजू बाजू में कौन बैठा है। I request the choir to come forward. और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोयर आप सामने आए। Hallelujah. Hallelujah. A God who listens to the cry that rises from the depth of our hearts. और परमेश्वर जो हमारे दिल के गहराइयों से निकलने वाले प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। Hallelujah. Is there any sin, any unforgiven sin that is blocking our prayer?
अगर ऐसा कोई भी पाप है जो हमारे प्रार्थना को रोकता है, Hallelujah. Even right now, confess that sin to the Lord. The Lord is going to forgive you even right now. Clear and clarify the line of prayer. वो पाप जो हमें रोक रहा है, जो हमारे प्रार्थनाओं को रोक रहा है, उसको आज तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए, क्षमा करने के लिए, मिटाने के लिए सक्षम परमेश्वर आज भी तैयार है। अभी इसी वक्त अगर हम बोलते हैं, उसको मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तो वो हमें उसमें से छुड़ाने के लिए तैयार है, तत्पर है, रेडी है। Hallelujah. A prayer that will bring immediate answer. वो प्रार्थना अभी के अभी सुना जाएगा। The command will go forth. जो आदेश जो निकलता है, Hallelujah. Fish will be commanded. और वो मछली को बताया जाएगा। Whatever is disturbing us, a command will go forth to stop that disturbance. और चाहे जो कुछ भी आज के वक्त हमारे दिमाग को खा रहा है, एक आदेश आएगा जो हमें शांति की ओर ले जाएगा। Even certain symptoms in the body, in the name of Jesus, let command go forth that symptoms will stop even right और now. अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का बीमारी है, कोई भी तरह का रोग है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला आदेश वचन उसको खत्म कर देगा। Some of the sicknesses, some of the cancerous sicknesses, in the name of Jesus, let command go forth that it will right now cease. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बिल्कुल घोषणा करते हैं, आदेश देते हैं कि अगर इस शरीर में कैंसर की कोशिका है, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिटाया जाए। And whatever kind of medical condition, let the command of God go forth right now to release and just heal right now.